ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th AP ਸੀਰੀਜ਼ CBSE ਬੋਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 MCQs ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 30th term of the AP given है। first term is given 10 and D is equals to second term minus first term. So second term is 7 minus 10. So 10 minus 7 आंदा है 3, 10 negative है so minus 3. So D आ गई minus 3 and N is equals to 30 given. So AN will be equal to A plus N minus 1 D. So A दी वैल्यू है 10, N minus 1 की हो जाएगा 29 into D is minus 3. So 10 minus 29 into 3 is 87. So 87 minus 10 is 77. 87 is greater, so negative sign. So answer will be C option. Next is 11th term of the AP is having first term is minus 3. So in second question, number of terms is 11 and first term is given minus 3. A is equals to minus 3 and D will be equal to second term is minus 1 by 2 minus first term is minus 3. So minus minus multiply होके plus बन जाएगा. So by taking LCM आएगा 2. So minus 1 plus 3 to the 6. So D आएगी 5 by 2. Okay, D is 5 by 2 and N is 11. So AN will be equal to A plus N minus 1 D. A is given minus 3, N minus 1 आएगा 10, multiply D is 5 by 2. 2 5s are 10, so 5 5s are 25 minus 3. Answer will be equal to 22. So B option is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मैंने स्टार्टिंग में जब एपी सीरीज़ के कंसेप्ट करवाए थे तो मैंने कहा था कि एपी सीरीज़ क्या है, एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस है, या हम कह सकते हैं स्पेशल टाइप की सीरीज़ है हैविंग फर्स्ट टर्म ए है और इसमें हम फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे। तो सेकेंड टर्म आएगी ए प्लस डी, उससे नेक्स्ट आएगी ए प्लस 2D, नेक्स्ट ए प्लस 3D अप टू सो ऑन। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a इज़ गिवन 2 एंड सेकेंड टर्म इज़ मिसिंग एंड नेक्स्ट टर्म इज़ 26. तो क्लियरली a इज़ गिवन एंड दिस टर्म वी नीड टू फाइंड एंड दिस टर्म इज़ गिवन a plus 2d is 26. So a plus 2d is equals to 26. Put the value of a here. A is 2. So 2 in this side goes to right hand side will become negative 2. So 2D will be equal to 26 minus 2 which is 24 and D will be equal to 24 divided by 2 is equals to 12. So here we need to find the term A plus D. So A plus D will be equal to A plus D will be equal to A is 2 and D we have find it 12. So A plus D is equals to 14. So this term will become 14. I hope all understood the first part. Second part, first term is also missing and third term is also missing. So let's try this question. First term होती है A, second term is A plus D, third term is A plus 2D and fourth term is A plus 3D. So this term is given and this term is given. This term is 13 and 3. So this term is 13 and this term is 3. We have to find this term and this term. ये हमने दो टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, a plus d is equals to 13 and a plus 3d is equals to 3. We use elimination method. एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3d माइनस का 3d प्लस का 1d बन जाएगा -2 एंड 13 - 3 आ जाएगा 10. तो d आ जाएगा -5.
d माइनस 5 अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये a बन जाएगा हमारे पास 13 माइनस d, 13 माइनस माइनस प्लस 5, 13 प्लस 5 इज़ 18। सो a वाली टर्म आ गई अपने को 18 तो a वाली टर्म की होएगी a प्लस 2d। तो ये तुसी अपने आप फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। फर्स्ट टर्म इज़ गिवन, first term a, second term is a plus d, third term is a plus 2d and fourth term is a plus 3d. In a question, first term is given 5 and last term is given 9 2s are 18, 18 plus 1 is 19 by 2. सो फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, ए वाली टर्म आप फाइंड करनी है, दिस टर्म इज़ ऑल्सो वी हैव टू फाइंड एंड दिस टर्म इज़ गिवन 19 by 2। सो ए इज़ गिवन इक्वल टू 5, ए की वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस 3d इज़ इक्वल्स टू 19 by 2। सो 3d विल इक्वल टू 19 by 2 माइनस 5, 2 हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 9 by 2, 3 एंड 9 कैंसिल हो जाएंगे तो d आ जाएगा 3 by 2। ए मिल गया, डी मिल गया, ए प्लस डी फाइंड कर दो, ए प्लस 2d फाइंड कर दो। एंड सिमिलरली लास्ट 2 पार्ट्स हमने करने हैं। इन दिस क्वेश्चन ए इज़ गिवन, ए प्लस डी वी हैव टू फाइंड, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d इज़ गिवन 6। पुट द वैल्यू ऑफ ए हेयर and find the value of d and then find a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d. In this question we have to find the a plus d is given, a plus 2d is we have to find, a plus 3d, a plus 4d and a plus 5d is given which is minus 22. Here we find the a and v by using substitution or elimination method. It's our choice to use substitution method or elimination method. Next is fourth part. Which term of the AP is 78? Which term means हमने number of terms find करनी है। A is given 3 and D is given 8 minus 3 which is 5 and AN is given 78 which is equals to 3 plus n minus 1 is equals to D. First of all 3 left hand side जाएगा तो negative 3 बन जाएगा इज इक्वल्स टू n हमने फाइंड करनी है एंड d इज़ गिवन 5, 78 माइनस 3 इज़ 75। अब इसको या तो आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 5n माइनस 5, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें पता है 5 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 को 75 के साथ डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 15। तो n माइनस 1 15 आ गया तो n कितना आएगा 15 प्लस 1 16। सेम वे में आपने फिफ्थ पार्ट करना है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट इज चेक वेदर माइनस 150 इज़ द टर्म ऑफ द AP। अगर माइनस 150 इस AP की टर्म होगी तो हम n फाइंड कर लेंगे। क्लियरली a इज़ गिवन 11 विच विल बी इक्वल टू माइनस 150, an की इक्वल रखेंगे प्लस n हमने फाइंड करनी है और d दी हुई है 8 माइनस 11 विच इज़ माइनस 3। सो 11 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो वो आ जाएगा 161 विच इज़ इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 3। माइनस 3 यहाँ से इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल। अब 161 के डिजिट को प्लस करो तो ये बनेगा 8, 8 3 पे डिविजिबल नहीं है तो 161/3 भी हमारे पास कुछ डेसिमल में आएगा। लेकिन n क्या है हमारे पास काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर ना तो फ्रैक्शन होते हैं ना डेसिमल होते हैं। सो हम लिखेंगे कि माइनस 150 ऐसे n हम फाइंड ही नहीं कर सकते तो माइनस 50 इस AP की टर्म नहीं होगी। नेक्स्ट फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म का मतलब हमने पता है ना an किसके इक्वल होती है a प्लस n माइनस 1d। a नहीं हमें पता लेकिन n हमें पता है तो n 31 माइनस 1 कितना आ जाएगा 30th d। इट मीन्स हमने ये फाइंड करना है a प्लस 31st टर्म मीन्स a प्लस 30d हमने फाइंड करना है। 11th टर्म इज़ गिवन इन द सेम वे 11th टर्म क्या होगी a प्लस 10d विच इज़ गिवन 38
and 16th term is a plus 15d which is equals to 73. एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, ए कैंसिल हो जाएगा, सो -5d विल बी इक्वल टू -73 में से 38 माइनस कर दो, तो ये हमारे पास बनेगा 35. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 35 डिवाइडेड बाई 5, डी आ गया हमारे पास 7. डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस 70. a मिल गया, d मिल गया, इसमें पुट कर दो तो आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज an AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. 50 टर्म्स हैं AP में. हैविंग थर्ड टर्म इज गिवन 12. थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म कौन सी है 50th टर्म, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d. देखो मैंने यही यूज़ किया हुआ है, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. a हमें पता नहीं तो n माइनस 1 क्या बन जाएगा 49d, बिकॉज n की वैल्यू हम 50th टर्म लिख रहे हैं. तो लास्ट टर्म इज गिवन 106. अगेन एलिमिनेशन मेथड लगा लो, तो ये बन जाएगा -47d और 106 में 12 माइनस करोगे तो ये बनेगा माइनस का 94. नेगेटिव नेगेटिव प्लस, सो डी आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 47, तो ये आएगा 2. सो डी की वैल्यू आ गई 2. तो a प्लस 2d की जगह अगर मैं d की वैल्यू पुट करूँ जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8. सो a की वैल्यू आ गई 8, d की वैल्यू आ गई 2. हमने क्या फाइंड करना है 29th टर्म. तो 29th टर्म का मतलब क्या होता है फिर n-1 आएगा तो बनेगा a प्लस 28d. a की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 प्लस 28 इंटू 2. ये आपने कैलकुलेशन खुद सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर देना है. नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन. थर्ड टर्म एंड 9th टर्म इज गिवन. थर्ड टर्म आएगी a प्लस 2d, वो हमारे पास दी हुई है 4, एंड a प्लस 8d विच इज़ गिवन -8. एलिमिनेट कर लो और 8 फाइंड कर लो, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -6d. 8 4 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2. d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, a फाइंड होगी. विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0, यानी कि an को हम क्या रखेंगे 0 और n फाइंड करेंगे कि कौन सी टर्म होगी जो 0 आएगी. सो a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू 0. a हमने निकाल ली, d भी हमने निकाल ली, यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे और n फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7. 17th टर्म होती है a प्लस 16d. 10th टर्म से a प्लस 9d से कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो a कैंसिल, सो 16d माइनस 9d विल बी इक्वल टू 7. सो 16 माइनस 7d होता है 7, तो d कितना आ जाएगा 7/7 इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट 11th. विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. हमें पता नहीं कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 मोर है, तो हम ऐसे ले लेंगे कि सपोज कर लो nth टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है. तो nth टर्म होती है a प्लस n-1d विच इज़ इक्वल्स टू 54th टर्म होगी a प्लस 53d प्लस 132. तो a कैंसिल हो जाएगी, ये हमने n फाइंड करनी है, और d हमें कितनी दी हुई है AP इज़ गिवन, a इज़ गिवन 3 एंड d इज़ गिवन 15 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12. सो d की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 12. तो n-1 हमने फाइंड करनी है विच इज़ इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132. पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ गया 132 में प्लस कर दो, 12 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर n-1 आ जाएगा, फिर n में क्या कर दोगे एक प्लस कर दोगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट these questions. 12th question is given. 2 AP have a same common difference. हमारे पास 2 APs हैं. सपोज कर लो मैं पहली AP ले रही हूँ a प्लस d, a प्लस 2d अप टू सो ऑन. सेकेंड AP की सपोज कर लो मैं फर्स्ट टर्म b ले रही हूँ, लेकिन इस AP का कॉमन डिफरेंस सेम ही है, तो सेकेंड टर्म b प्लस d ही आएगी.
थर्ड टर्म b प्लस 2d आएगी अप टू सो ऑन, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि a 100th माइनस b 100th इज गिवन 100। तो ये हमारे पास 100 गिवन है, और हमें पता है a 100 का मतलब क्या है, a प्लस 99d माइनस b 100 का मतलब क्या है, b प्लस 99d। माइनस क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो तो अंदर वाले साइन चेंज कर देता है, तो ये बन जाएगा माइनस का b माइनस का 99d इज इक्वल्स टू 100। माइनस 99d प्लस 99 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 100। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसे हम यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000th टर्म क्या होगा, हमने फाइंड करना है a 1000 माइनस b 1000, ये हमने फाइंड करना है। तो a 1000 आएगा a प्लस 999d, यहाँ आएगा माइनस b माइनस 999d, मैंने माइनस पहले ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, a माइनस b, जो हमने अभी फाइंड किया था 100, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं एंड 999 पे ख़त्म होते हैं, तो हमने देखना है कौन सा नंबर 7 पे डिवाइड होगा। तो 7 पे डिवाइड करके देखो, आई थिंक 104 को डिवाइड करके देखो तो ये बनेगा 105 7 पे डिवाइड होगा, तो फर्स्ट नंबर आ गया 105, उसके बाद आ गया 112, सेव में लास्ट वाला नंबर देखो कौन सा आएगा यहाँ पे जो 7 पे डिविजिबल है। एपी सीरीज़ बन गई, हाउ मैनी मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करनी है। ये आपके होमवर्क हैं जो आपने ट्राई करने हैं, दोनों क्वेश्चन 13 एंड 14। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।